हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पर we have given a quadratic equation which is in a standard form, लेकिन यहाँ पर ये फ्रैक्शन है। अगर हम ये 2 को एलिमिनेट कर सके so we can solve the question easily। okay, so let's see here, यहाँ पे 1/2 है। if we have to eliminate this divided by 2, so we have to multiply whole quadratic equation by 2। so therefore यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन लिखता हूं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2, therefore multiply equation by 2। okay, so therefore 2 into 2 4x square minus 2 into 2 minus 4x plus 1/2 multiplied by 2, so here 2 will get cancelled, is equals to 0 multiplied by 2, answer will be 0। we have to multiply quadratic equation by 2 on both sides, so therefore here we get 4x square minus 4x plus 1 is equals to 0। okay, now here we have the value of a, b and c while we are doing the solving the equation by factorization method, so at that time a multiplied by c is equals to, now here 4 into 1, so 4 into 1, answer is 4। now factorize this 4 in this way, the product of two number, वो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 4 होना चाहिए और वो दो नंबर का एडिशन -4 होना चाहिए। आपका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है और उन दोनों का समेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स द बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। ओके, आर यू गेटिंग दिस? सो देन द फाइंड आउट दोस नंबर्स -2 एंड सेकेंड वन इज आल्सो -2, 2 2s are 4, -2 एंड -2 हम उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो विल गेट द आंसर +4 and if we add together, so answer will be -4। so this is a -2 and -2, then put those values factors instead of -4x, so this will be 4x square minus 2x minus 2x plus 1 is equals to 0। then first two terms and लास्ट टू टर्म्स, देन यहां पर आप लोगों को ये फर्स्ट टू टर्म में कॉमन फैक्टर्स लेना है। 4x स्क्वायर माइनस 2x, 4 और 2 में कॉमन क्या लिख सकते हैं 2, x स्क्वायर और x में कॉमन क्या लिख सकते हैं x। सो यहां पर 4x में से 2 बाहर निकला, सो रिमेन हियर 2, x स्क्वायर में से x निकला, सो रिमेन हियर x, माइनस 2x में से 2x निकला, सो रिमेन हियर -1 bracket close। then think about this two terms -2x plus 1, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, so we can take as a -1 common। okay, so in this bracket this is a -2x will be become a +2x and +1 will be become a -1। okay, if we observe this step, so we'll see, we can say that 2x -1 and another bracket is also 2x -1। आपके दोनों भी ब्रैकेट इक्वल होने चाहिए। यहां पर 2x -1 के नाम पे एक वाला 2 बंगलो है, तो उसमें एक बंगलो में एडजस्ट कर लिया, जो बाहर थे उसको दूसरा वाला बंगलो दे दिया। 2x -1 इज इक्वल्स टू 0 लिखना ना भूले। देयरफॉर नाउ सेपरेट दिस टू ब्रैकेट्स, 2x -1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x -1 is equals to 0। then next one
2x is equals to minus 1 will be become plus 1 other side, or 2x is equals to 1, then x is equals to 1 upon 2, or x is equals to 1 upon 2. Now here we get the value of x, or solution or root of the quadratic equation same. So here we can write 1 comma 2 comma 1 upon 2 comma 1 upon 2. This is our answer. Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. This is the last question of solve the following. This is the last question of our main question, first question. So let's see question number 6th one. Question number 6 is 6x minus 2 upon x is equals to 1. Question number 6th. 6x minus 1 upon x minus 2 upon x is equals to 1. Is it in a standard form? No. Okay, so first of all convert this into the standard form. Therefore solution में आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 6x minus 2 upon x is equals to 1. First of all यहाँ पर this is also rational number. Okay, इसका डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे minus 2 upon x है. इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है क्या? नहीं. सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6x मल्टीप्लाइड बाय x minus 2 whole divided by x is equals to 1 as it is. Then next one, 6x into x will be become a 6x square minus 2 whole divided by x is equals to 1. Okay, the next one, 6x square minus 2 is equals to 1 multiplied by, यहाँ पे ये x divide कर रहा था, other side it will be multiply, so 1 multiplied by x will be become x. Then next one, write this into the standard form, so this will be 6x square plus x will be become a minus x to the other side, minus 2 is equals to 0. Now here we get our quadratic equation. We have to solve this equation by factorization method. Now here the value of a is a 6, value of b is a minus 1 and value of c is a minus 2. While we are doing a factorization method, now here a multiplied by c, so 6 into minus 2, 6 into minus 2 will be become a minus 12. Now find out the factors of minus 12 like the यहाँ पर we have to find out the factors of minus 12 such that the product of two number is minus 12. That means the first number is positive and other one is negative and their difference, उन दोनों का difference कितना होना चाहिए? minus 1. That means our greater number is negative and our smaller number is positive. उन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए? -1. और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? -12. अगर उनका मल्टीप्लीकेशन -12 है, दैट मींस दे हैव डिफरेंट साइड, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी 2. 2 के टेबल में 12 आता है. ओके, सो देन 2 6 12, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4. सो वो वाला पेयर यहाँ पे नहीं चलेगा. द नेक्स्ट वन थर्ड टेबल इज 3. ओके, ये आप लॉजिक से फाइंड आउट कर सकते हैं. 3 के टेबल में 12 आता है. कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पे. 3 4s are 12. ओके, देन नेक्स्ट वन 3 4s are 12 और उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 and 4 में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 ओनली. सो नाउ हियर वी कैन से दैट +3 and -4
+3 -4 विल बी बिकम, इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, विल गेट द -12. ओके, एंड इफ वी सब्सट्रैक्ट देम 3 -4, आंसर विल बी -1. सो नाउ हियर वी गेट द पेयर ऑफ दिस quadratic equation. Now put this value instead of this x, यहां पे ये वाला वैल्यू आप लोगों को रिप्लेस करना है. So therefore write down 6x square plus 3x minus 4x minus 2 is equals to 0. Now here ये दो टर्म और ये लास्ट वाले दो टर्म, इनका पेयर फॉर्म कीजिए. देन आफ्टर दैट 6x स्क्वायर माइनस 3x, ये दो टर्म में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? थिंक अबाउट द नंबर्स 6 and 3. वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन. ओके, x स्क्वायर एंड x, इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं. नाउ हियर 6 में से 3 हम लोगों को मिल गया. सो इन दिस ब्रैकेट रिमेन 2 और x स्क्वायर में से x निकला, सो रिमेन देयर ओनली x. 3x आपका टोटल बाहर निकला, सो रिमेन हियर +1. ओके, देन नेक्स्ट वन हियर -4x -2, माइनस माइनस दोनों में कॉमन है, सो मैं यहां पर माइनस लेता हूं. ओके, 4 and 2 में कॉमन क्या निकलेगा? 2. सो इन ब्रैकेट 2x, यहां पे x तो नहीं था, सो x एज इट इज. 4 में से 2 निकला कॉमन, सो 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 2. बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, 4 में से 2 निकला सो रिमेन 2, और यहां पर 6 में से 3 निकला तो यहां पर 3. दैट्स रॉन्ग. निकला दैट मीन्स वी आर टेकिंग कॉमन फैक्टर्स आउटसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाहर हम कॉमन फैक्टर्स ले लें, तो यहां पर 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर विल गेट 2. ओके, यहां पे लॉजिक अगर आप ऐसा लगाएंगे कि 4 में से 2 निकला सो रिमेन हियर 2, लेकिन 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 2. द नेक्स्ट वन, यहां पर बचेगा आपका +1. इफ यू ऑब्जर्व 2x + 1, 2x + 1, देयरफॉर 2x + 1 को एक ब्रैकेट में डालिए, और दूसरा जो बाहर था इज इक्वल टू 0 लिखना भूल गया. 3x - 2 इज इक्वल टू 0. द नेक्स्ट वन, नाउ सेपरेट द ब्रैकेट. यहां पर आपका ब्रैकेट सेपरेट होगा. 2x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 2 इज इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट वन, 2x प्लस यहां पर 2x इज इक्वल टू +1 विल बी बिकम अ -1 टू अदर साइड, और 3x is equals to -2 become a +2 other side. Then next one, x is equals to -1 upon 2, or x is equals to 2 upon 3. So now here we get the values of x, -1 by 2, comma 2 by 3. These are the roots of this quadratic equation. These are the solutions of this quadratic equation. If we substitute these values into this equation, it will satisfy the both side of the equation. Okay, so let's see question number 2 of practice set 2.2. Sorry, here we have given the question number 7, which is also a sub question of question number 1. In that question, we have given some activity based question. Here we have given √2x square, √2x square रूट के बाहर है, plus 7x plus 5√2 is equals to 0. To solve the quadratic equation by factorization, complete the following activity. Okay, we have given, this is activity based question. Let's see how we can solve this question by factorization method. यहां पर जो आपको इक्वेशन दिया है उसके कोएफिशिएंट अंडर रूट है.
आपका वेरिएबल अंडर रूट नहीं है। अगर आपका वेरिएबल अंडर रूट रहता है, सो वी कैनॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन बिकॉज दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स सी question number 7, which is the sub question of question number first. Root 2x square plus 7x plus 5 root 2. Root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equals to 0. Okay, now here we have given the quadratic equation which is in a standard form already. So first of all, here value of a is a root 2, value of b that is a plus 7 and value of c is 5 root 2. So let's see here how we can solve this type of question. First of all, write the equation in a standard form. It is a given already in a standard form. Root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equals to 0. Then next one, a multiplied by c. Okay, so यहां पर मैं लिखता हूं a multiplied by c. So root 2 multiplied by 5 root 2. Okay, so here root 2 into root 2, answer will be root 4. 5 multiplied by root 2 into root 2, answer will be root 4. Root 4 that means is equals to 2. So 5 into 2 is equals to 10. Okay. So now here we have to find out the two factors of 10. Okay. लेकिन यहां पर आप लोगों को ये 5 इंटू 2 10 आप लोगों को मिला। यहां पर ऐसे दो नंबर फाइंड आउट कीजिए कि वो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्लस 10 आना चाहिए और उन दोनों का समेशन प्लस 7 आना चाहिए। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो 5 2 are 10 and both numbers are positive. So 5 and 2, 5 2 are 10. Therefore रूट 2x स्क्वायर प्लस, मैं यहां पर कॉमन लेने के लिए पहले 2 लेता हूं, 2x प्लस 5x। हम लोगों ने ये 7x को 2x प्लस 5x में कन्वर्ट किया। देन नेक्स्ट वन प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ हियर वी हैव फर्स्ट टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स। ये दो टर्म में और ये दो टर्म में हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर नेक्स्ट वन, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x। यहां पर रूट 2 और 2 में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? रूट 2 आपका रूट 2 है। वी कैन राइट दिस 2 लाइक दिस, 2 इज इक्वल्स टू रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 आंसर इज 2. सो वी कैन राइट 2 इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू रूट 2. ओके, तो यहां पर भी रूट 2 है, सो वी कैन टेक एज अ रूट 2 कॉमन अगर हम नंबर्स की बात करें. ओके, और यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पर एक्स, सो हियर वी कैन टेक एक्स एज अ कॉमन. ओके, द नेक्स्ट वन इन ब्रैकेट रूट 2 में से रूट 2 आपका कॉमन निकला, सो रिमेन यहां पर 1. एक्स स्क्वायर में से आप लोगों ने एक्स को कॉमन बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, सो रिमेन हियर ओनली एक्स. ओके, 2 में से रूट 2 निकाला, 2 में से रूट 2 निकाला, सो रिमेन हियर रूट 2. सो यहां पर मैं प्लस लिखता हूं और रूट 2 लिखता हूं. एक्स तो आपने ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है. देन नेक्स्ट वन, सिमिलरली 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहां पर हम लोग प्लस 5 को कॉमन ले सकते हैं. देन नेक्स्ट वन, x प्लस 5 आपका बाहर निकला, सो 1 रूट 2, सो दैट इज वी कैन राइट ओनली रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. x प्लस रूट 2 के नाम पर दो बंगलोज है, सो x
प्लस √2 ने अपना पूरा सामान एक बंगलो में शिफ्ट किया और जो लोग बाहर घूम रहे थे √2x प्लस 5 को उसका दूसरा बंगलो दे दिया. सो नेक्स्ट वन, नाउ सेपरेट दिस ब्रैकेट्स. सो इट विल बी x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 और √2x plus 5 is equals to 0. Then next one, x is equals to plus √2 will be become a minus √2 other side. Minus √2 and or here √2x is equals to plus 5 become minus 5. Then next one, only x is equals to -5 अपॉन √2. √2 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा था, अदर साइड डिवाइड करेगा. सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -√2 कॉमा -5 अपॉन √2. आर यू गेटिंग दिस? सो इसी प्रकार से हम लोग ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन भी आया, सो वी कैन सॉल्व दिस इजीली बाय फैक्टराइजेशन मेथड. लेकिन फैक्टराइजेशन करते समय आप लोगों को ये सारी चीजें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स का, वो भी आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है. अगर आप लोगों को इसमें डिफिकल्टी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, तो आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. This is also similar type of question is 3x square minus 2√6 x plus 2 is equals to 0. Okay. So let's see question number 8. We are solving the quadratic equation practice set 2.2 and now we are solving question number 8, which is the sub question of question number first. Okay, यहाँ पे आपको पहला ही एक ही क्वेश्चन दिया है and we have to solve that quadratic equation by factorization method. Now here we have given 3x square minus 2√6x 3x square minus 2√6x, okay, plus 2 is equals to 0. Plus 2 is equals to 0. Okay, so we have to solve this question. यहाँ पर we have given a quadratic equation which is in a standard form. Okay, यहाँ पर ये आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है और आपको इसे सॉल्व करना है. वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 2 मेथड्स. ओके, अगर आपको ये 2√6 नहीं चाहिए, सो ये √6 हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर हम इलिमिनेट करने जाएंगे तो वो √6 यहां पर चला आएगा, वो भी आपको सेम ही होगा वो प्रोसीजर. सो उससे बेहतर है कि हम पहला वाला मेथड यूज करें, जो भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं उस तरीके से. सो नाउ लेट्स सी हियर a मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल्स टू 3 into 2, आंसर इज 6. ओके, अब यहां पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है. फाइंड टू numbers which have multiplication 6 plus 6, okay, and their summation is -2√6. वो दोनों का समेशन आपका होना चाहिए -2√6. ओके, अगर हम लोग यहां पर -√6 एंड -√6 की बात करें, लेट्स सी हियर -√6 and -√6.
So here minus root 6 into root 6, answer is root 36. 36 का हम square root निकालेंगे, answer will be plus 6. Okay, minus into minus, answer is positive. अगर हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव है सो श्योरली दोनों भी नंबर्स के साइन सेम ही होंगे, बोथ आर पॉजिटिव पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. सो हियर वी गेट द फैक्टर्स root 6 and root 6 which are both are negative. So therefore in solution, first of all write the equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equals to 0. Therefore 3x square minus root 6 minus 1 root 6 minus 1 root 6 that is a root 6. सॉरी यहां पर मैं x लिखना भूल गया. माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 is equals to 0. Okay. The next one here this two terms and this last two terms. तो ये दोनों टर्म्स में हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और वो कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद वो जो हमारा पहला वाला ब्रैकेट और दूसरा वाला ब्रैकेट होता है इसके स्टेप के बाद वो वाला हम लोगों का कॉमन होना चाहिए. ओके, तो आइए देखते हैं कि हम इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी हियर 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x. ओके, तो हम ये 3 को रूट 6 और ये 2 को रूट 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे 6 रहता सो वी कैन राइट रूट 6 एंड रूट 6. लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन हम लोग वो कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो भी फाइंड आउट करेंगे. तो आइए देखते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस 3 into root 3 into root 3 and root 6 into root 3 into root 2. हम लोग 6 को जैसे लिख सकते हैं root 6 into root 6. So we can write 3 into form of root 3 multiplied by root 3 x square minus root 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं root 3 multiplied by root 2 into x. ओके, यहां पर माइनस. नाउ हियर root 6 को कन्वर्ट कीजिए 2 के फॉर्म में. यहां पर हम root 6 को लिख सकते हैं root 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 x प्लस 2 को लिखेंगे हम लोग रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ हियर आपका जो फर्स्ट वाला पेयर है और दूसरा वाला पेयर है थोड़ा सा एक्सपांड हो चुका है. दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये वाला एक पेयर, एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. प्लस और माइनस टर्म्स को डिवाइड करता है. मल्टीप्लाई साइन आने से वो वाला टर्म सेपरेट नहीं होता है. सो देयरफॉर नेक्स्ट वन हियर रूट 3 इंटू रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 3 इंटू रूट 2x. इसमें हम लोग रूट 3 कॉमन ले सकते हैं. वी कैन टेक एज अ रूट 3 कॉमन. देन नेक्स्ट वन x स्क्वायर और x में क्या कॉमन ले सकते हैं x. सो इन ब्रैकेट विल रिमेन रूट 3x minus root 2. Okay, in a second pair here root 3x into root 2x plus root 2 into root 2. इसमें हम root 2 कॉमन ले सकते हैं, वो भी माइनस. सो माइनस का साइन जो था आप लोगों ने यहाँ पे लिखा. सो इट विल बी बिकम अ रूट 2 माइनस रूट 2. द नेक्स्ट वन ब्रैकेट में क्या बचा, रूट 2 बाहर निकला. सो ब्रैकेट में बचा रूट 3 जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन है. ओके, रूट 3x रूट 2 इंटू रूट 2
इस इन दोनों में से एक रूट 2 बाहर निकला, सो रिमेन हियर प्लस रूट, यहाँ पर ये प्लस था तो ये इट विल बी बिकम अ माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. इफ यू ऑब्जर्व दिस फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट सेम होना चाहिए. अगर नहीं होता कि हम लोगों का फिर फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं तो भी गलत होगा. सो देयरफॉर रूट 3x माइनस रूट 2x माइनस रूट 2 ये एक ब्रैकेट में, और जो बाहर वाला था इट इज इन अनदर ब्रैकेट. रूट 3x माइनस 2 is equals to 0. Now it's time to separate it. So therefore root 3x minus root 2 is equals to 0, or root 3x minus root 2 is equals to 0. Therefore root 3x is equals to minus root 2 will be become a plus root 2 other side, or root 3x is equals to similarly minus root 2 will be become a plus root 2. Then find the value of only x. X is equals to root 2 upon root 3, or here x is equals to root 2 upon root 3. So these are the same solutions, identical solutions. So here we can say that x is equals to root 3 upon root 2 comma root 3 upon root 2. These are the roots of this quadratic equation, or these are the solution of this quadratic equation. So like this we can solve question number 8. So next to this question, question number 9, 10th, 11th and 12th, these are the your assignments. Please try your best, try to solve the question by your own self. आप खुद सॉल्व कीजिए. अगर नहीं आता है, कुछ डाउट्स है, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक बार दोबारा टैली कीजिए. अगर नहीं समझ में आता है, सो वी आर हियर टू हेल्प यू. ओके, आप लोगों को आज के वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा फैक्टराइजेशन मेथड, वो आप लोगों को समझ में आया होगा. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पे ट्राई कीजिए. अगर नहीं होता है, सो वी आर ऑलवेज विथ यू, वी आर ऑलवेज फॉर यू. ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मैं आशा करता हूं. आज हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, उससे जो कुछ क्वेश्चंस थे डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, वो आज हम लोगों ने सीखे. कल हम लोग सीखने जा रहे हैं अनदर मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज विच इज कॉल्ड एज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्क्वेयरिंग मेथड. ओके, उसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं. उसमें हमको स्क्वायर निकाल के एक और दूसरे साइड में प्लस माइनस करना होता है, वो वाला टर्म जिसे हम थर्ड टर्म कहते हैं. ओके, सो फोर्थ टर्म कहते हैं, कुछ लोग थर्ड टर्म कहते हैं. तो उसको हम लोगों को दोनों साइड में, एक तो एक साइड में प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, या ऐड इन बोथ साइड. मतलब अगर आप कोई टर्म लेते हैं, मैं यहाँ पर एक सपोज, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं +6 और यहाँ पर भी +6, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में +6 और -6 कर सकते हैं. तो वो सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे. आप भी एक बार लेक्चर अटेंड करने से पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसका पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा सा मतलब आप जब लेक्चर अटेंड करते हो तो आपको वो सारी चीजें जल्दी से ग्रास्प हो सके, आप लोगों को सारी चीजें जल्दी से समझ में आएगी. सो मिलते हैं. होप यू ऑल ऑफ आर बीन एंजॉयिंग आवर वीडियोस, और ये वीडियोस देखिए, आप आपका पढ़ाई कंटिन्यूअस जारी रखिए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं.